I have an interesting or a genuine question. Yeah. In 1 Corinthians chapter 14 verse 10 and 13 says that every language has a meaning and there is no language without meaning. Yes. Paul says one who speaks in tongues should pray that he may interpret. Yeah. And then just that because at the day of Pentecost when the disciples were speaking in tongues, the people gathered there were interpreted them as their own language. Yeah. Rather there were no interpreter at that time. So in modern days, how should believers understand the role of interpretation of tongues? Wow, that's a very good question. बहुत अच्छा सवाल है। One, पहली बात, there is speaking in tongues. अन्य भाषा बोलने का। Read for me 1 Corinthians 14, 1 and 2. पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय पहला और दूसरा वचन कोई पढ़े। Read for me 1 and 2 and 3 up to verse 3. 1 से 3 तक। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी उनमें रहो, विशेष करके यह है कि वह भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। Okay. Now it says, verses 2, if your gift is to speak in tongues, यदि आपको अन्य भाषा बोलने का वरदान है, it says, लिखा है, let me get the translation, King James. Okay. It says that, for he that speaketh in unknown tongue, जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं speaketh unto God, वो परमेश्वर से बात कर रहे हैं, not unto men. मनुष्य से बात नहीं कर रहे, For no man understands him, क्योंकि कोई भी परमेश्वर के इस भाषा नहीं समझ howbeit सकते। in the spirit आत्मा में जो कहते हैं he speaks mysteries. और भेद की बातें बोलते हैं, But he that prophesies और जो लोग भविष्यवाणी करते हैं speaketh unto men और वो मनुष्य से बात करते to हैं edification. ताकि मनुष्य की आत्मिक उन्नति हो जाए। Now verses 4. चौथा वचन, He that speaks in tongues, और जो लोग अन्य भाषा in बोलते हैं, unknown tongues, sorry, अन्य भाषा बोलते हैं, edifies himself. वो अपने आप की आत्मिक उन्नति करते हैं। Now there are different ways. देखिए दोनों अलग चीज है। There is what you call unknown tongue. जो अन्य भाषा जो है, There is what you call known tongue. और एक तो जानने वाला भाषा। So if I'm praying in unknown tongue, अन्य भाषा में यदि मैं प्रार्थना करता हूँ there is need for interpretation. और कोई भी अन्य उसको तर्जमा करने की जरूरत है ही नहीं। I don't know Spanish. मैं स्पेनिश भाषा को नहीं जानता। But Spanish स्पेनिश भाषा is a known tongue. मेरे लिए It is known. मैं उसको वो भाषा नहीं जानता। But I don't know Spanish. मैं स्पेनिश भाषा को नहीं जानता। So when I pray, जब मैं प्रार्थना करता the हूँ, Holy Spirit पवित्र आत्मा may allow me मुझे अलाउ करेगा to speak in Spanish. कि स्पेनिश भाषा में Not बात because करने I की। know Spanish, इसलिए नहीं है मैं भाषा but जानता because हूँ, there is somebody in the congregation इसलिए हो सकता है उस कलीसिया में स्पेनिश जानने वाला कोई बैठा है। who knows Spanish वो जो व्यक्ति स्पेनिश जानते हैं, and they know I don't know Spanish, मैं स्पेनिश नहीं जानता, but they can hear God speak to them in their Spanish. पर परमेश्वर चाहे तो मेरे द्वारा स्पेनिश भाषा में उस व्यक्ति से बात कर Are you सकते हैं। understanding? That is known tongue, ये है जानने वाला भाषा, but unknown to me, पर मेरे लिए तो अन्य भाषा है, but known to the listener. पर जो सुनने वाले के लिए वो जानने वाला भाषा है। One of the greatest evangelists, एक बड़ा जो सुसमाचार का प्रचारक है, Reinhard Bonke, रेनाल्ड बोंगे, he was in Argentina. वो अर्जेंटीना में था एक बार। As he entered Argentina, जैसे अर्जेंटीना में प्रवेश हो गया, there was a big crusade. वहां पर बहुत बड़ा क्रूसेड था, Now he goes into that village where the crusade और was, जहां पर क्रूसेड चल रहा था वहां गया, and many witches, और वहां पर बहुत सारे जादू टोना करने वाले they थे, came for that meeting. वो भी उस मीटिंग में आए, Nobody knew they were there. और किसी को पता नहीं, जादू टोना करने वाले बहुत सारे लोग आए, So many witches were angry with him. बहुत सारे जादू टोना करने वाले इस मीटिंग में शामिल हुए, So they were holding hands और वो सब हाथ पकड़ा to cause confusion. ताकि जो बोंगे को कंफ्यूजन
दिला सके। So what happened? क्या हुआ? He started speaking in tongues. क्योंकि बोंगे अन्य भाषा बोल रहा था, He didn't know why he was speaking in tongues. वो जो अन्य भाषा बोल रहा था उनको खुद नहीं पता मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूँ। When he started praying in tongues, जब अन्य भाषा में वो प्रार्थना कर रहा था he found himself और उसने ये काम किया, speaking the language of that village, वो उस गांव के भाषा भी बोलना शुरू कर दिया। and he didn't know what he was saying. पर इनको खुद नहीं पता मैं उस गांव वालों का भाषा बोल And रहा he हूँ। was saying in that language, उस भाषा में क्या बोल रहा था? there are witches on the third row, और तीसरे लाइन में जादू टोना करने वाले लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं। holding your hands against this meeting. आप इस मीटिंग के खिलाफ में हाथों से एक दूसरे को हाथ पकड़कर आप मेरे विरोध में कुछ बोल रहे हैं। Repent or fire will fall upon you. यदि तुम पश्चाताप नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर आग गिरेगा। So Bonke didn't know what he was saying, बोंगे प्रचारक को तो पता नहीं है वो क्या बोल रहा है, but the people listening, पर जो सुनने वाले they knew what he was saying. उनको तो समझ आ गया क्या बोल रहे हैं। So sometimes इसलिए कभी कभी God may allow you to speak what you don't know, आपको परमेश्वर अलाउ करेगा जो चीज आप जानता ही नहीं, because the message is not for you. क्योंकि वो संदेश आपके लिए नहीं था, The message- वो संदेश वहां बैठने वाले किसी के लिए था, The message is for somebody. किसी और के लिए था। Hallelujah. हालेलुया। So इसलिए the truth is this: सच बात ये है, the tongues that are known, जो अन्य भाषा जो है, somebody will be listening to what you are saying. हो सकता है आपका उस शब्द को कोई और व्यक्ति समझ रहे हो, But the tongues that are unknown, जो अन्य भाषा जो है we need to interpret them. नॉर्मली उसको तर्जुमा कर देना चाहिए। But let me explain how. पर मैं आपको एक्सप्लेन When करता I हूँ। begin to speak in tongues, जब मैं खुद अन्य भाषा बोलता था, many times I don't know what I'm saying. कई बार मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। But sometimes, listen, पर सुनिए, when I finish speaking in